Hi everyone, Assalamu alaikum. I hope you can hear me and my voice is very clear to you. So one last time, chemistry, I hope. O-level chemistry, not chemistry for sure. Uh, okay, so any preferences of any topic? Can you people hear me? Is my voice clear? Just tell me that first. Awesome. How is the preparation? How is the morale? How well you people are prepared about for it? Bria Qasim, if you are there, allow me to share my screen as you are the host. I can't share it. Walaikum assalam, Talha. I was thinking about the same topic, Hamza, because I have a very strong feeling that it will be there. और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेटल्स के साथ आएगा. तो क्या ख्याल है, मेटल्स भी रिवाइज कर लें? यार अब होस्ट स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन दे दें मुझे तो मैं स्क्रीन शेयरिंग करूं. अच्छा जी, अपना डिनर शिनर पेंडिंग किया है तुम लोगों की इस क्लास की खातिर. पहले मूड नहीं था, but then I got to know that you people are waiting, and I'm so glad that I was able to help you out since this is our last class. So I really want to end up on a very good note. Bria, then make me the host. I will do that. So, but there's just one request to all of you. And that one request is that whatever you will be talking, it should be regarding the work only. Ask as much questions as you people can. I'll be like really glad to help you out in any way. So let's begin. I got the rights to share my screen. And let's begin with metals then. Thank you, Arise, for such beautiful comments. I have heard a lot good about you, and my TS told me that how passionate you are about your studies and all, and wish you very, very best of luck. All of you, in fact. Just people are joining in, so I'm giving one more minute to let them join. So I'll be focused on teaching only. Thanks, Bria, for sending these messages. My TAs are active with me today, which is again a very good thing. Okay, so we'll beginning with the metals, and I'll be connecting the metals with the environmental chemistry, and that's how the paper will going to if the question will be there, inshallah ta'ala. Uh, it will be coming with metals and environmental chemistry. That's what my plan is, and then a little bit of moles and empirical formula because that's had been requested to me also. So मेटल्स के बारे में अगर अच्छा वीडियोस दो अपलोड होंगी रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो वो वीडियोस Bria, there's organic chemistry revision 1 and organic chemistry revision 2 do uploaded on the YouTube channel. They are very precise videos, like I have kept it short and simple. Sufyan, you have to learn it. There is no other way that you can arise. I will keep a paper one class if you want it, since you are very regular. You have been a very regular student of mine, so I will keep.
I'll keep one, even if I have to keep it only for you. That's the respect you have gained from all of us, from my team. They always talk very good about you, and I respect the people who are, keen to learn. Anyways, बात हम ये कर रहे थे, ये जो एक question मेरे पास आया, that how do we know that a compound is atmospheric? Bria, can you please answer the questions regarding channel, please? कंपाउंड एटमॉस्फेरिक होता है या नहीं होता है, मैं इतनी आपको हिंट दे देती हूँ, जनरली, बिकॉज एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्साइड्स, Sufyan, this is for you. When we are talking about oxides, then the compound most likely to be atmospheric when these oxides are with non-metals. They are atmospheric. I repeat my thing, when we are talking about oxides, and those oxides are with non-metals, with generally acidic oxides. So they are atmospheric, as well as hydroxides का जहाँ पे word आता है, तो hydro हमेशा link करता है water के साथ. तो जहाँ पे hydro का word आएगा, it would be water. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स दो ही हैं आपके पास, जिंक एंड सिलिकॉन. नॉट दो एज इन पूरे वर्ल्ड के अंदर दो हैं, लेकिन आपके कोर्स के अंदर दो ऑक्साइड्स हैं, एंड दोज टू ऑक्साइड्स आर जिंक ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड. सो आप प्लीज उनको याद कर लीजिए, दैट विल बी गुड इनफ फॉर यू. उसके लिए आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा ऑक्साइड्स उन्होंने आपको इस कोर्स के अंदर दिए हुए ही नहीं है, तो जो आपके कोर्स में उसने सिलेबस में दिया नहीं है, वो अंग्रेज कभी उससे आगे पीछे आपसे सवाल करेगा ही नहीं. I'm like would glad if you will be asking more questions, so keep on asking. Amphoteric oxide में आपके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है. मैंने अभी जस्ट सिलेबस से कंफर्म भी कर लिया है इसको. I repeat, amphoteric oxide के aluminium oxide, it's lead oxide and zinc oxide. That what you learn. These are amphoteric oxides, and these three oxides are good enough. I hope, Hassan, this helped you out. Is there any other question related to any other thing? Please go ahead before I begin with metals formally. Hassan, organic, agar main karwane baithungi, to I will not be able to touch any other topic, and I have a very strong feeling that there will be questions from metals, environmental chemistry, and moles. And मैं बहुत बार, yeah, it is uploaded on the YouTube channel as well, so you can go over there. And if you have any questions related to organic chemistry, please do not hesitate to post it. My TAs will be here whole night, जितना हम जाग सकते हैं, to answer those questions. Okay, ठीक है. I got you, Briha. तो मैं वो equations करा देती हूँ. मैं metals के साथ ही equations करा देती हूँ. Yes, sir, this meeting will be uploaded on YouTube for sure. Everything which I'll be doing today, every 40 minutes, it will be uploaded on the YouTube. Yeah, electrolysis is very, very easy, and I have requested people uh, not to be very, very stressed out about electrolysis. It's just my gut feeling, which can be very much wrong, but I think it's given already in the paper 4. So it's not a hard and fast rule that it will not come in paper 2. It can be, but it will not be with the very much detail. That's what my internal feeling is telling me. So electrolysis के लिए इतना परेशान नहीं हूँ. एक दो चीजें हैं electrolysis के अंदर, वो मैं metals के साथ ही कवर करवा दूंगी, क्योंकि metal के साथ वो touch होता है electrolysis का topic. अच्छा जी, अगर और कोई क्वेश्चन ना हो तो लेट्स बिगिन विद मेटल. मेटल जो है वो आपकी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेस करता है, और किस तरह से बेस करता है, इस तरह से करता है दैट the 75% of the periodic table is based on metals basically. The elements in the periodic table, out of which 75% are the metals. और metals की जो properties हैं उनके अंदर इनकी high जो मतलब बहुत ही जिनके बारे में सवाल किया जा सकता है, वो properties होती हैं कि ये इनकी high density होती है, इनका high melting point and boiling point होता है. इसके अलावा they are shiny and they are solids, और solids के अलावा इनके अंदर एक ही exceptional case आता है, and that one exceptional case is mercury. I hope you know that. और एक और जो इसके बारे में केस आता है वो ये आता है that they are malleable and ductile. Okay.
अच्छा जी, ये बात हमने कर ली, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है वाई। वाई मतलब कि क्यों? अगर एक मेटल बहुत स्ट्रांग है तो क्यों है? अगर वो बहुत हाई डेंसिटी है तो क्यों है? अगर वो मेलेबल है, डक्टाइल है तो क्यों है? भाई वजह क्या है? ये सारी प्रॉपर्टीज क्यों मेटल नॉन मेटल्स के पास नहीं है और क्यों ये सारी प्रॉपर्टीज मेटल्स के पास होती हैं? कैन यू पीपल आंसर दिस क्वेश्चन? मीनवाइल आई विल बी आंसरिंग इट फॉर श्योर, बट जल्दी से बता दो। और दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट कंडक्टर वाला एक अलग सिनेरियो आता है, उसका रीजन काफी अलग हो जाता है। बाकी अभी जो ये रीजन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, दिस रीजन जस्टिफाइज टू एवरीथिंग। उनके हाई डेंसिटी को, हाई मेल्टिंग पॉइंट को, शाइनी होने को, सॉलिड होने को, मेलेबल एंड डक्टाइल होने को ये जस्टिफाई कर देता है। ओनली वन रीजन, एंड दैट वन गुड रीजन इज, कैन एनीबॉडी टेल मी? नोबडी? ओके, दे हैव देखिए तीन चीजें होती हैं। वन इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दैट मैटर्स अ लॉट। इसके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट वो मैटर करती है। एंड किसी बच्चे ने भी यहाँ पे बोला, सुफियान ने आई गेस बोला है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स राइट। और वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो किसके बीच में होती है? मेटल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो मेटल का स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा नजर आता है कि उसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी हैं और पॉजिटिव आयंस के साथ उनके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? ये स्ट्रक्चर हम सब जानते हैं। और मेटालिक बॉन्डिंग क्या चीज होती है? मेटालिक बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यस, दिस इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से they become highly dense, they have high melting and boiling point, and they are generally solids. अब ये सवाल पैदा होता है कि ये मेलेबल और डक्टाइल क्यों है? I repeat my thing, why metals are solids, why metals have high density, why metals have high melting and boiling point? Reason is that there is a strong force of attraction between the positive nucleus and the electrons as well. अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये मेलिएबल और डक्टाइल क्यों होते हैं? इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो होती हैं, बट बनाने वाले ने, ऊपर वाले ने इसको ऐसा बनाया कि इनकी जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिजिड नहीं होती। देखो, फोर्स का स्ट्रॉन्ग होना एक और बात होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रिजिड होना एक और बात होती है। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट rigid. In fact, that force of attraction is really flexible. अच्छा, होता क्या है? होता ये है कि अगर आप इसके ऊपर, ये जो आपके पास ये लेयर्स बनी हुई होती हैं, इस लेयर के ऊपर अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स अप्लाई करने से इसकी ये जो लेयर की अरेंजमेंट होगी, द लेयर्स अरेंजमेंट विल गो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये कुछ ऐसी अरेंजमेंट हो जाएगी। मतलब तो इसने क्या किया, इस मेटल ने स्लाइड किया, slide over. So why they are malleable and ductile? They are malleable and ductile because the layers of the metals have the capability to slide over each other. I repeat, the metals, they have the capability to slide over each other. That is why they are malleable and ductile, and they are that much flexible that they can be changed into different shapes, and they can be molded into wires as well. Is this thing clear? Yeah, it is. इज दिस थिंग क्लियर टू यू पीपल? वाई आप लोगों को समझ में आ गया? इसका जो हाई डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो वाई है वो है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेलेबल और डक्टाइल होने का जो वाई है जिसको हम कहते हैं, इट इज बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। अब हम बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन मेटल्स के बारे में ये क्वेश्चन बड़ा आता है, बहुत ही हॉट फेवरेट मुझे ऐसा लगता है कि टीचर का है, और वो ये है कि दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वो आपसे सवाल करता है why are they very good conductors of heat and electricity? Can you tell me the reason why? Very good, excellent. Freely moving electrons, freely moving electrons जिस किसी के पास भी होंगे वो definitely वो क्या होगा, उसके अंदर conduction capability होगी, that will be able to conduct electrons. I repeat, any matter which have freely moving electrons or freely moving any particle, not just electrons. अगर किसी चीज के पास, बल्कि इसको इस तरह ले लेते हैं कि अगर आपके पास ये सवाल आता है
कि कोई चीज कंडक्टर है तो वो कंडक्टर क्यों है, उसके पास डेफिनेटली कोई फ्रीली मूविंग पार्टिकल होगा जिसकी वजह से वो कंडक्टर बना होगा। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो अगेन इलेक्ट्रोलिसिस से जाके भी लिंक करती है, और वो लिंक ये करती है कि हमने कहा है कि जो मेटल्स हैं उनकी एक रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में डिफरेंशिएट किया हुआ है, ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ये मेटल कम रिएक्टिव है। क्या कोई बता सकते हैं कि साइंटिस्ट ने रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बनाई होगी, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? अगर मैं वो रिएक्टिविटी सीरीज का थोड़ा सा पार्ट बनाना चाहूँ तो ये सोडियम, और सॉरी पोटेशियम, देन आई हैव सोडियम, देन आई हैव कैल्शियम, देन आई हैव मैग्नीशियम। मैं यहाँ आयंस नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वो लिख रही हूँ, क्या नाम है, मेटल्स लिख रही हूँ, क्योंकि ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज की बात हो रही है। देन आई हैव जिंक, देन आई हैव आयरन, देन आई हैव लेड, देन आई हैव हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा कॉपर और मेरे पास आ जाएगा सिल्वर। किसी ने मुझे कहा कि दैट इज, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जेवरा, दैट इज फॉर द metallic ions. It's good to learn this way for the metallic ions, but not the reactivity series of the metal. It's a little bit different, but you should not go into the details. अच्छा जी, फ्रॉम हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन किसी ने बोला, लेकिन अभी ऊपर मैंने किसी का पढ़ा था, शायद करके नाम ऊपर चला गया, लेकिन मुझे जवाब याद रह गया। किसी ने कहा था कि उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा के डिफरेंशिएट किया गया था कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, तो ये जवाब बिल्कुल सही था। यस, Taha, there are a lot of metals, aluminium also, but I'm just including those metals which generally differentiates a lot in their reaction. So that is why. Otherwise, yes, there are a lot of metals, as I told you, that there are 75% of the periodic table are the elements which are metals, so there can be many more. वाटर और एसिड के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो इनके साथ रिएक्शन करवा के आप बात पता चलती है दैट विच वन इज मोर रिएक्टिव एंड विच वन इज लेस रिएक्टिव। द वन, और वाटर के दो तरह के वाटर के साथ रिएक्शन करवाया गया, विद कोल्ड वाटर एंड विद द वार्म वाटर एज वेल। जो तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते रहे, इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, लेकिन जिन्होंने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया उनको वार्म के साथ रिएक्ट करवाया। पहले कोल्ड के साथ रिएक्शन करवाया, फिर वार्म के साथ रिएक्शन करवाया। जिन्होंने वार्म के साथ भी रिएक्ट नहीं किया उनको एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, बिकॉज एसिड के अंदर हीट कंटेंट काफी ज्यादा होता है, तो पता चला कि कौन कितना रिएक्टिव हो सकता है। दैट्स हाउ दे हैव गेज्ड द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स। अच्छा जी, अगर मैं पोटेशियम का रिएक्शन करवाती हूँ किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ, ये तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवा के मुझे प्रोडक्ट में क्या बना के देगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? जल्दी जल्दी बताओ, हमने क्विकली आगे बढ़ना है। अगर वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाएगा? ये बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 बनाता है, ठीक है। और ये इस वजह से बनाता है क्योंकि इसको बनाना है, मतलब H2 ब्रेक हो जाता है H और OH के अंदर। अच्छा, अगेन अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम में भी सेम यही रिएक्शन होगा, जो मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो अगेन वही, यहाँ पे अगर इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया है तो इसके अंदर ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करवाती हूँ तो मैग्नीशियम के साथ ये बना देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, मैग्नीशियम, यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं, यहाँ तक जितने भी होते हैं ये सारे के सारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इन सब का जो रिएक्शन होता है दिस इज विद कोल्ड वाटर। ये अंडरस्टूड सी बात है that if they can react with cold water they can definitely react with the warm water as well. I repeat my question, listen it carefully and then answer me. If these metals, which metals, potassium, sodium and calcium, if they can react with cold water, they can definitely going to react with warm water as well. And the reaction of all of these, why am I talking about, why am I talking till calcium and why I'm not including magnesium is because जो मैग्नीशियम का रिएक्शन रेट होता है ना वो बहुत ही स्लो होता है, ये बहुत स्लो रिएक्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब ये बेचारा मर मर के रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ। हाउ एवर इनके जो रिएक्शंस होते हैं खासे फास्ट रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, वो मेटल्स इनके कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। आपको लगता है कि वी शुड सजेस्ट दैट दे शुड बी रिएक्टिंग वार्म वाटर एज वेल? क्या इनको वार्म वाटर के साथ हमें रिएक्ट करवाना चाहिए? शुड वी मेक देम रिएक्ट विद वार्म वाटर? दो सवाल है मेरे।
क्या हमें इनका वार्म वाटर के साथ और एसिड के साथ रिएक्शन करवाना चाहिए या नहीं? वी शुड नॉट, वी मुजम्मिल थैंक यू फॉर बीइंग वेरी क्विक, हमें इनका रिएक्शन नहीं करवाना चाहिए. दे शुड नॉट बी रिएक्टिंग विद वाटर, दे शुड नॉट बी रिएक्टिंग विद एसिड, बिकॉज ये इतने हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं कि अगर ये एसिड एंड वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे द रिएक्शन कैन बी एक्सप्लोसिव. नाउ my second question is कि can these metal react with warm water and acid? It can be a yes or a no. Can these metals react with warm water? Yes, they can. Thank you, Muzammil, again. That's very quick of you. These metals, they can react with warm water and acid both, but we should not react them. तो जब क्वेश्चन आएगा ना तो उस पर गौर करना, वो सवाल में उसने पूछा क्या है. ये बेसिकली पास पेपर का क्वेश्चन था. मैंने एक दफा अपने मिड ईयर एग्जामिनेशन में दिया था स्कूल के अंदर. बच्चों, मैंने उसमें ये पूछा था कैन दे रिएक्ट. सबने कहा कि नो नो नो, दे कैन नॉट रिएक्ट, दे कैन नॉट रिएक्ट, रिएक्शन कैन बी वेरी रिएक्शन कैन बी वेरी एक्सक्लूसिव. भाई मैंने ये नहीं पूछा दे शुड बी रिएक्टिंग और नॉट, मैंने ये पूछा था दे कैन रिएक्ट और नॉट. दे कैन, बट हमें करवाना नहीं चाहिए उसका रिएक्शन. सो what I'm trying to tell you here is that while reading your question, be very careful that what exactly the question is asking for. मैग्नीशियम का रिएक्शन क्योंकि कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही स्लो रिएक्शन है, इसलिए हम इसको किससे रिएक्ट करवाते हैं, हम इसको वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं. वार्म वाटर कह लो या स्टीम कह लो, हम इसका स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं. जब हम इसका स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसके प्रोडक्ट में क्या बनेगा. अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं लिक्विड, और अगर हम स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएं तो प्रोडक्ट चेंज होते हैं. सो व्हाट विल बी द चेंज? द चेंज विल बी कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की बजाय आपके पास क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा. तो यही रिएक्शन अगर मैं इवन जिंक के साथ करवाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड. आयरन के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो ये बना देगा आयरन ऑक्साइड, और ये Fe3O4 बनाता है. हाउएवर अगर मैं लेड ऑनवर्ड्स जाऊंगी तो लेड ऑनवर्ड्स ये वार्म वाटर के साथ या फिर ये स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं देता. नो रिएक्शन विद स्टीम. और ये क्यों कोई रिएक्शन नहीं देते, बिकॉज दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव एंड दे नीड मोर एनर्जी टू गेट रिएक्ट विद. so that is why we will go for their reactions with acids. इनके reactions जो generally होते हैं वो किसके साथ होते हैं, acids के साथ होते हैं. इनका further water के साथ reaction नहीं करवाते. I hope this thing is clear to you. We need to learn this by the way, कि कौन से मेटल जो है वो कैसे रिएक्ट करता है और किसके साथ रिएक्शन होता है, किसके साथ रिएक्शन नहीं होता. एक और एक्सेप्शनल केस आता है, वो ये आता है कि अगर हम लेड का रिएक्शन करवाते हैं विद HCl तो हमें एक सर्टेन लिमिट के बाद कोई रिएक्शन नहीं नजर आता. कैन यू टेल मी व्हाई? अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक बीकर है और उस बीकर के अंदर मैंने क्या भरा हुआ है, HCl भरा हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास है एक लेड का पीस. एक सर्टेन लिमिट के बाद लेड का रिएक्शन फर्दर नहीं होगा. उसका रीजन क्या है? कैन यू एनीबॉडी टेल मी द रीजन? यस, ऑक्साइड लेयर तो इसके अंदर खैर नहीं बन सकती है. जब लेड जो है वो रिएक्ट करता है HCl के साथ, इट कन्वर्ट्स इनटू PbCl2 व्हिच इज लेड क्लोराइड. इसके ऊपर एक लेड क्लोराइड की लेयर बनेगी एंड दिस लेड क्लोराइड लेयर विल बी अ रेजिस्टेंट फैक्टर फॉर फर्दर रिएक्शंस. ये फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देती है या फिर ये रेजिस्ट कर देती है. दैट इज व्हाई HCl के साथ इसका कोई डिटेल्ड रिएक्शन नहीं होता. मूविंग अहेड वेरी क्विकली, एक और रिएक्शन जो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, मेटल्स के बारे में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आई होप यू नो, ये आप लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर द वन इन व्हिच highly reactive metals are going to displace the less reactive metal. तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव नहीं है. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए. अगर मैग्नीशियम जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो विल मैग्नीशियम बी एबल टू डिस्प्लेस जिंक और नॉट? माय क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. Will magnesium will be able to displace zinc or not?
Yes, it will displace and it will form magnesium sulfate और plus इसके साथ आपके पास क्या बनेगा, जिंक जो है वो इसके अंदर से अलग हो जाएगा. That's how. So I think एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिंक, और अगर मैं कॉपर सल्फेट की एग्जांपल करूं तो इसके अंदर मेरे पास क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर बनेगा. That's how these things happens. I hope कि अगर आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज याद रखेंगे तो ये चीज आपको याद रखना आसान होगी. आगे बढ़ते हैं जी. रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड ऑक्साइड ऑफ अदर मेटल. अगर मतलब ये जनरली आई थिंक इसको मुझे भी करवाने की जरूरत नहीं है. इसमें एक चीज मैं आप लोगों को जरूर करवाना चाहूंगी और वो चीज क्या है, जस्ट लेट मी टेक इट आउट बिकॉज आई फील दैट कैन बी इम्पोर्टेंट. अच्छा, इसमें एक और सवाल मेरी नजरों से गुजरा था अभी बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हुए, वो ये था कि कैन जिंक रिएक्ट विद HCl. आप सबसे मेरा ये क्वेश्चन है, कैन जिंक रिएक्ट विद HCl और नॉट, एंड यू हैव टू गिव मी द रीजन आल्सो. एंड व्हाई नॉट? No, this is not the reason. It's just that zinc being a metal, it can only be reduced by metal using electrolysis. ये सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम करवा सकते हैं. और या फिर जो जिंक है वो जब वो रिएक्ट करता है तो वो सिर्फ जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में रिएक्ट करता है. जिंक पाउडर फॉर्म में या तो रिएक्ट करेगा, या जिंक को रिएक्ट करवाने के लिए हमें जिंक ऑक्साइड की फॉर्म लेना बहुत जरूरी है. अच्छा, आगे जो मैं आप लोगों को करवाना चाह रही थी, जो चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, एक क्वेश्चन आता होता है अक्सर, पिक द वन. उसमें ये मेटल्स को लेके काफी सवाल आते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कंपाउंड्स, आपको ये स्टेबिलिटी याद कर लीजिएगा. जस्ट इंस्टिंक्ट के माइंड दिस स्टेबिलिटी कैन कम. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है पोटेशियम, ठीक है, और देन आपके पास है सोडियम, एंड देन आपके पास है कैल्शियम, देन यू हैव मैग्नीशियम, देन यू हैव एल्यूमिनियम, मैंने ऐड कर लिया. जिंक, आयरन कौन सा बच्चा था वो जिसके लिए मैंने ये ऐड किया है, एनीवेज लेड है. और यार ये मुझे ना ज्यादा स्पेस चाहिए तो मैं इसको दूसरे तरीके से बना दी हूँ, बिकॉज आई वांट दिस टू बी गोइंग इन वन रो. पोटेशियम है, एंड देन आई हैव सोडियम, एंड देन आई हैव कैल्शियम, एंड देन आई हैव मैग्नीशियम, एंड देन आई हैव एल्यूमिनियम, then I have zinc, and then I have iron, then I have lead, copper, और फिर mercury, और फिर silver, और फिर है मेरे पास platinum. अच्छा जी, ये सारी चीजें मेरे पास हैं. और अब सवाल आपके पास ये आता है कि अगर इन सब के ऑक्साइड्स हों, किस किस के ऑक्साइड्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के अंदर टूट सकते हैं, which are. अगर मैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक की बात करूँ, और मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं ऑक्साइड्स की बात कर रही हूँ, तो ऑक्साइड्स में ये दे कैन बी स्टेबल और दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. अगर मैं जिंक की बात करूँ, जिंक से लेके कॉपर तक दे रिड्यूस्ड बाय, अगर हमें इनको रिड्यूस करवाना होता है बाय हीटिंग विद कार्बन ओनली. अगर हम इनके ऑक्साइड्स की बात करें, दे कैन रिड्यूस बाय हीटिंग विद कार्बन ओनली. यस, दैट्स राइट. और अगर मैं मरकरी से लेकर प्लैटिनम तक की बात करूं, अगर हम इनके ऑक्साइड्स की बात करें, तो ये किससे रिड्यूस होते हैं, अगर हमें इन्हें रिड्यूस करवाना होता है बाय हीटिंग ओनली. इनको सिर्फ आप हीट कर लो. अगर हमें इनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस करवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ता है. अगर हमें इनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस करवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हीटिंग विद कार्बन करना पड़ता है. और अगर हमें इनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस करवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू डू हीटिंग ओनली, एंड दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट व्हिच यू नीड टू लर्न. आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे. अगेन मैं बात करती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल पोटेशियम, then I have sodium, then I have calcium, then I have what, magnesium, aluminium, zinc, iron, and then I have lead. और फिर आ गया मेरे पास कॉपर, और फिर आ गया मर्करी, और फिर आ गया सिल्वर,
फिर आ गया प्लैटिनम। मैं उतनी ही रख रही हूँ जितने मेरे पास स्पेस में एडजस्ट हो सकते हैं। ऑफ कोर्स बेटा हसन, कार्बन इज अ नॉन मेटल, और मैं शायद बार बार ये बात बोल रही हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल्स ओनली, एंड दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिविटी सीरीज एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? लेड और फिर कॉपर हो गया। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसकी? हाइड्रोक्साइड्स की। ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स में पोटेशियम और सोडियम की अगर हम बात करें, दे आर स्टेबल टू हीट। अगर मैं कह रही हूँ दे आर स्टेबल टू हीट, तो इसका क्या मतलब है? और अगर मैं बात कर रही हूँ बाकी किसकी, कैल्शियम टू कॉपर, अब मैं बात करूंगी कैल्शियम टू कॉपर हाइड्रोक्साइड की। अगर मैं बात करूँ तो इनके हाइड्रोक्साइड्स की क्या कंडीशन होती है? दे डिकम्पोज, ये टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं? दे डिकम्पोज इनटू मेटल ऑक्साइड एंड स्टीम। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है, इसका ले लेते हैं, अगर मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर ये सॉलिड है, अगर मैं इसको हीट करूं तो ये हीट करने पे किसमें टूटना चाहिए? मेटल ऑक्साइड। ये बन जाएगा मेटल ऑक्साइड और उसके साथ ये बनाएगा स्टीम विच इज H2O। और अगर हम बात करें सिल्वर टू प्लैटिनम, तो सिल्वर टू प्लैटिनम जो है इसके अंदर दे आर अनस्टेबल और दे डू नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, दे डू नॉट एग्जिस्ट। आर यू गेटिंग द फिनोमिना कि अगर आप इनके ऑक्साइड्स पढ़ रहे हो तो उसके बारे में आपको क्या याद करना है, अगर आप हाइड्रोक्साइड्स पढ़ रहे हो तो उसके बारे में आपको क्या याद करना है? Are you getting the phenomena or not? Like that, what you supposed to learn in this? Just say yes or no, and then I'll tell you that what I'll be doing next. Okay. So what the next we will be doing is के बजाय इसके कि ये, because ये सिर्फ याद करने की चीज़ है, इसमें इतना समझाने वाली चीज़ नहीं है। आपको ये याद करना होता है कि कौन सा ऑक्साइड किस तरह मतलब रिड्यूस होगा और कौन सा वाला स्टेबल है, कौन सा वाला, कौन सा इनके कंपाउंड स्टेबल नहीं होते। तो करना ये है दैट क्या मैं कह रही थी, ब्रिया, या ब्रिया। सो ब्रिया, आई वांट यू टू प्लीज अपलोड अ टेबल। मैं तुम्हें वो टेबल दे देती हूँ। वो टेबल आई गिव यू एंड यू हैव टू अपलोड इट, अपलोड दैट टेबल ऑफ stability of metal compounds, Bria. Just upload that table, stability of metal compounds, in wherever you are, you generally upload it. Arise, I'm coming back to your question, बेटे। मैं बस ये इसको ये बता दूं इंस्ट्रक्शंस के, इसको क्या आगे करना है। ओके, सो आई होप कि जो लोग मुझे ये बोल रहे थे कि कार्बन इसमें कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में, अगर आपके पास कोई मिसिंग आ रहा है तो उसका रीजन क्या है, वो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव लर्नड एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन? किस किस को याद है और किस किस को याद नहीं है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन? ओके, सो अगर किसी को ये याद नहीं है तो प्लीज आप ये याद कर लीजिएगा, because again this is very important. To your question arise, I think आपने मुझसे ये पूछा था कि कोबाल्ट कहाँ पे प्लेस होगा, am I right? Arise, just quickly tell me, am I right that you have asked me that where cobalt will going to place? ओके, अगर आपने कोबाल्ट की प्लेसमेंट करनी है और अगर मैं इसी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखूं तो कोबाल्ट विल बी प्लेस बिटवीन आयरन एंड लेड। यहाँ पे कोबाल्ट यहाँ पे प्लेस होता है, और कोबाल्ट जो है इट इज वेरी मच रिएक्टिव विद एसिड्स, और yeah, it is very much reactive with acid, but it's not very much reactive with water. Arise, am I able to answer your question, beta? Is that clear to you now? कोबाल्ट इन दोनों के बीच में आएगा, और कोबाल्ट जो है वाटर के साथ लेस रिएक्टिव है, और ये एसिड के साथ जो है reactive है।
यार कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में बहुत बार करवा चुकी हूँ, आई एम नॉट गोना रिपीट इट बिकॉज मैंने और बहुत सारे प्रोमिसेस किए हैं। इसकी वीडियो अपलोडेड है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज नॉट अ बिग डील एट ऑल, बिलीव मी। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के क्वेश्चंस, यस, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम के क्वेश्चंस बहुत अरसे से नहीं आए हुए हैं, तो आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो तो खैर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आई डोंट नो यू पीपल विल बी लाइकिंग इट टू रिवाइज इट और नॉट, आई हैव नो आइडिया। बट अगर आप लोगों ने इसको याद नहीं किया तो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। Environmental chemistry पे quickly move करते हैं because again environmental chemistry is another area which I feel that it can be there. Environmental chemistry में सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए composition of air। ये काफी ज्यादा पेपर के अंदर आती है। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस कितनी होती है एयर के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन गैस कितनी होती है एयर के अंदर, नोबल गैसेस कितनी होती हैं यानी इनकी परसेंटेज क्या होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज क्या होती है। नाइट्रोजन गैस की अगर हम बोलें तो 78% होता है, ऑक्सीजन की बात करें 21% होता है, ये 1% होता है, एंड दिस इज 0.03%। Before I move on to the next topic, rejoin because the meeting is about to end.